ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਬ ਨਿਰਭया ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਿਰਭया ਵਾਸ ਦ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫॉर मी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ नहीं चलता। कि जब हम इंडिया से यहाँ आते हैं हमारे एजुकेशन और हमारे इंडिया के एक्सपीरियंस को सेम वैल्यू वेटेज नहीं मिलती। डॉक्टर्स बेचारे टैक्सी चला रहे हैं, MBBS MD डॉक्टर। मुझे वेट गेन करने का इंजेक्शन लगवाए थे, मैंने स्कूल में थी, डॉक्टर के पास जाके मैंने कहा मुझे ना वेट गेन करना है, मुझे इंजेक्शन लगा दो। अब मुझे पता नहीं उसने मुझे सिर्फ पानी के इंजेक्शन लगाए या क्या लगाया तसल्ली के लिए। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि तू इतने पैसे पर्सनल ट्रेनर को देती है, यही तू, मेरी सिस्टर कहती थी किट्टी डाल देख तेरा डायमंड का सेट आ जाएगा। तो मैं उसको एक ही जवाब देती थी जो कि मैं सब औरतों को कहूँगी कि डायमंड के सेट, गोल्ड के सेट तो आ जाएंगे, आप पहन भी लोगे और वो एक्सपेंसिव डिजाइनर कपड़े भी आप बनवा लोगे। अगर आप फिट नहीं हो तो वो आपको सजेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी है। ओके। ये मिथ है। लोगों को लगता है कि मैं अगर 5 दिन जिम नहीं जा पाऊंगी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तब करूंगी जब मेरे पास टाइम होगा। हाँ, लोग कहते जी 5 days a week जाओ, 6 days a week जाओ, तो तुसी कहते हो भी जरूरी नहीं जाना। मैं थ्राइस a week जानी है सिर्फ। 70 to 80% ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। 20-30% ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਾਂਠੇ ਆਲੂ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। फिर इंटरव्यू कॉल जो था वो जूम पे होता है। ऑनलाइन जूम ऑडिशन में वो सिर्फ आपकी शक्ल नहीं देखते। यहाँ तक तो फिर भी आसान था, असल चैलेंज शुरू हुआ इसके बाद। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਬਿਊਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਗਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੂ نو ਦਾ ਆਊਟਰਾਈਟ ਵਿਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਲਾਵਰੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। चलो नो फिल्टर, असलियत बताती हूँ आपको इस इंडस्ट्री की आज। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, मगर अच्छे घरों के जो लोग हैं वो कहते हैं इसमें नहीं जाना, इसमें बहुत गंद है, कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चीज़ां पहले ही पता सी ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? किसी की मेरे सामने आवाज नहीं निकलती थी गलत तरीके से जी। क्योंकि मेरा एक डर था। मैंने अपने CEO से भी एक बार ऐसे करके बात करी थी, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस, ऐसे करके उंगली दिखा के। सारे पैजेंट एक उसमें नहीं, आप मोल्ड में नहीं डाल सकते हो। जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन से पैजेंट के लिए जा रहे हो। क्राउन मिले ना मिले वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ਦਾ ਆਊਟਰਾਈਟ ਵਿਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਲਾਵਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਦਾ ਆਊਟਰਾਈਟ ਵਿਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਲਾਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮਿਸਿਸ
ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਚਿਕਾ ਦਾ ਆਊਟਰਾਈਟ ਵਿਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਲਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੀ ਰੁਚਿਕਾ, ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਚਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੁਚਿਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਡਾਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, BCom ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ। ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇ ਬਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਐਨਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਲੀ ਬੜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੀਪਲ मैनेजमेंट स्किल्स, मैं बहुत सीखे। कैसे आप एक दूसरों को समझते हो, अपने आप को दूसरों के नजरिए से देखते हो, अपने आप को दूसरों, कहते हैं ना पुट योर सेल्फ इन अदर शूज। जी। मैं बड़ी जल्दी अपनी लाइफ विच सिख लिया सी। आई थिंक ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣੀ ਹੈ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਇਨ ਮਾਈ ਜਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ PR ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਰੁਚਿਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2015 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ BCom ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਕਮਰਸ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਬॉय ਫॉर ਮੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਗਾਈ ਕਮਿੰਗ, US ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਵਾਂਗੀ, ਨੋਟ ਈਵਨ ਮਾਈ ਵਾਈਲਡੈਸਟ ਡ੍ਰੀਮਸ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ। मैंने अपना MBA भी किया, एग्जीक्यूटिव MBA किया। ठीक है। जब मैं काम कर रही थी पेप्सी में, आई वाज वर्किंग विद वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, रवि जयपुरिया ग्रुप जी। वो इंडिया के इनफैक्ट नाउ ग्लोबली नंबर 1 पेप्सी के बॉटलर हैं जी। डिस्ट्रीब्यूटर, बॉटलर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, सेल्स, सारा कुछ उन्हीं की कंपनी हैंडल करती है, एवरीथिंग। तो मैंने उनके साथ बहुत साल काम किया है उस कंपनी में। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, रिपोर्टिंग टू माय CEO डायरेक्टली। मेरा CEO भी
ही वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड वो नेस्ले और कोक जैसी कंपनी में हेड रह चुके थे इन लंदन एंड मोर प्लेसेस इन द वर्ल्ड जी। तो वो हमारी कंपनी के सीईओ थे, तो मैं उनको रिपोर्ट करती थी। तो मैं बहुत ही सीनियर पोजीशन पे थी एंड जब मैं कनाडा आने लगी तो मेरी प्रमोशन हो रही थी, वो मुझे वीपी बना रहे थे आज से 12-13 साल पहले। तो बट तब मैं कनाडा आ रही थी तो ऑफ कोर्स वो चाहते थे हम तुझे वीपी बना देते, हम तुझे श्रीलंका, नेपाल, भूटान भी दे देंगे। फिर ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? कनाडा मेरा आने का डिसीजन मेरे हस्बैंड का था पहले जी, बिकॉज मेरे हस्बैंड की सारी फैमिली धीरे धीरे 50 सालों में ओवर द पीरियड ਸਾਰੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਚਾਚੇ, ਬੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? 2014 ਮਈ 2014 ਮਈ 12 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਨਿਰਭਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਸੋ ਨਿਰਭਇਆ ਵਾਸ ਦ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫॉर ਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਫਟੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 24/7 ਮੇਰੇ ਘਰ 3 ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ है ना पता नहीं चलता, बिकॉज जब तक हम उनको फ्रीडम नहीं देंगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरी डॉटर तब ग्रेड 7-8 में थी, ऑफ कोर्स ग्रोइंग भी थी, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो मैं जब ग्रेड 7-8 में थी मेरे अंदर था। तो वो ये भी एक फैक्टर था बिकॉज सेफ्टी वाज अ मेजर कंसर्न। और ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ डिसीजन लिया। हाँ, दैट मेरा करियर पाथ अगर मैं देखूं तो करियर के लिए इट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੀ फॉर देम, फॉर देयर ग्रोथ। एंड कहीं ना कहीं आज मुझे मैं फील करती हूँ इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि आज मेरे बच्चों में जो ग्रोथ इस कंट्री में आई है, जो एक्सपोजर उनको मिला है यहाँ पर, वो शायद इंडिया में नहीं मिल पाता। बहुत फ़र्क है सोच में, बच्चों की बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है कोई, बट आई थिंक वो एक दौर था जब इतना सेफ फील नहीं करते थे। आई थिंक वो दौर वहाँ पे भी पास हो गया, अब वहाँ पे भी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। आई थिंक वो बस कहते हैं ना जो होना होता है वो हो जाता है। फिर इत्थे आके किहड़ी जॉब कीती तुसीं? पहले तो जदों मैं इत्थे आई ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। अच्छा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि जब हम इंडिया से यहाँ आते हैं हमारे एजुकेशन और हमारे इंडिया के एक्सपीरियंस को सेम वैल्यू वेटेज नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। For whatever reasons, I will not go in that details, but ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੀ ਪਈ ਡਾਕਟਰਸ है। ਵਿਚਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, MBBS MD डॉक्टर। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब मैं यहाँ आई कि मेरे को, मैं एक सीनियर पोजीशन से आई थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, CEO को रिपोर्ट करती थी, मेरे नीचे इतनी बड़ी टीम थी, मैं पूरा नॉर्थ इंडिया हैंडल करती थी। और अब आप मुझे कहते हो कि मेरे को यहाँ पे, मैं नहीं कहती कोई जॉब छोटी है, मगर मैं ये कहती हूँ कि मे बी मैं कितने लेवल नीचे जाऊंगी, देन व्हाट आई एम कैलिबर्ड फॉर। मेरे स्किल सेट बहुत हाई हैं, मैं इससे बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं कैसे मैं इस कंट्री में एक डिसेंट जॉब ले सकूं ताकि मेरे लिए वो दरवाजे खुले जो कि अभी बंद है। फिर मैंने अपने CEO जो मेरे बॉस थे इंडिया में, उनको मैंने कांटेक्ट किया, उनको मैंने बोला आप प्लीज़ मुझे एक रेफरेंस दो। तो उन्होंने मेरे को रेफर किया AB InBev, बडवाइजर जी, नंबर 1 लबैट यहाँ पर कहते हैं, लबैट के नाम से है। इट्स अ नंबर 1 बियर कंपनी इन द वर्ल्ड। जी जी, आई रिमेम्बर। उन्होंने मेरा रेफरेंस वहाँ उनके COO को दिया इन न्यूयॉर्क, हेड ऑफिस, ग्लोबल ऑफिस। वहाँ से मेरा रेज्यूमे आया टोरंटो में हेड ऑफिस में। वहाँ से मुझे कॉल आया इंटरव्यू के लिए। फिर मेरा इंटरव्यू यहाँ पे हुआ वैंकूवर में, BC में, जो वैंकूवर में सेल्स ऑफिस है। बड़ा छोटा ऑफिस है, 20 लोगों का, नॉट वेरी बिग, बट तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू, ऐसा नहीं है रेफरेंस दे दिया तो नौकरी मिल गई। रेफरेंस वाज कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुला लो, बाकी तो मेरे ऊपर है ना कि मैं क्या करती हूँ इंटरव्यू में। मेरे 3 इंटरव्यू हुए थे 1-1 घंटे के, और अलग अलग दिन में। और मेरे ऑनलाइन पूरा मेरा एक्सेल प्रेप PPT उस टाइम पे जो भी स्किल सेट नीडेड थे उसका टेस्ट अलग हुआ था जी। मेरा EQ का अलग टेस्ट हुआ था। तो देवर 5 स्टेजेस जो मैंने क्लियर करी। मतलब वो 3 घंटे में जितना जिंदगी में सीखी थी ना, सब निचोड़ लिया था उन्होंने इंटरव्यू में। बट आई गॉट द जॉब, बट ऑफ कोर्स नॉट द पोजीशन आई was enjoying previously। तो ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੀਜਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਬਡੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੌਕਡ। ਸੋ मैंने कहा नहीं, ऑफ कोर्स मेरे माय गुड वर्क आई डिड इन इंडिया हेल्प्ड। तो ऑफ कोर्स अगर मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था तभी मेरा रेफरेंस गया। रुचिका सिंह गलबात कीती तुहाडे इंडिया ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਰੁਚਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਚੌਹਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਐਜ਼ ਏ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਨੋਨ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਮੋਡਲਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਤੇ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं हमेशा से बहुत हेल्दी नहीं थी, मैं हमेशा से पतली दुबली होती थी, बल्कि
मुझे वेट गेन करने का इंजेक्शन लगवाए थे मैंने स्कूल में थी डॉक्टर के पास जाके मैंने कहा मुझे ना वेट गेन करना है मुझे इंजेक्शन लगा दो अब मुझे पता नहीं उसने मुझे सिर्फ पानी के इंजेक्शन लगाए या क्या लगाया तसल्ली के लिए बट लेकिन वो भी लगवाए थे मैंने बट जैसे जैसे हम लेडीज की एज बढ़ती है वक्त बदलता है बच्चे होते हैं ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਲਈ ਏਜ ਆਪਣੀ ਹੁਣ जी थैंक यू आई थिंक मेरा टर्निंग पॉइंट आया जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई ओके फर्स्ट प्रेगनेंसी पे मैंने जो वेट गेन किया था वो बड़ी आसानी से चला गया था बिकॉज मैं यंग भी थी जब मेरी सेकंड डॉटर हुई मैं आई वाज 30 तो आजकल तो लोग 30 में फर्स्ट चाइल्ड करते हैं नॉर्मल है बट आई हैड माई सेकंड वन तो जब मैं सेकेंड बेबी के टाइम पे मेरे बहुत ज़्यादा हार्मोनल थायराइड इशू था मेरे को लो ब्लड प्रेशर बहुत हो रहा था बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थी मेरे को रोज़ इंजेक्शंस लगते थे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था एंड उस ड्यूरेशन में मैंने बहुत वेट गेन किया बहुत ज़्यादा और ऑफ कोर्स डिलीवरी के बाद भी जो कम नहीं हुआ था एकदम काफ़ी वेट हो गया था मेरा जो ज़िंदगी में कभी नहीं था तो तभी मैं आई थिंक मेरी छोटी वाली बेटी 3.5 महीने की थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई तो वो फैमिली की ना फोटोज होती है ना पोर्ट्रेट खींच के ना मेरे फादर इन लॉ ने ना ब्लो आउट करा के घर में लगवा रखी थी बड़ी बड़ी फैमिली पिक्चर्स मैं जब उनको देखती थी ना मुझे लगता था ये मुझे क्या हो गया मैं तो ऐसी कभी भी नहीं थी आई थिंक मैं वो फोटोज जो थी ना जो एनलार्ज करके लगी थी वो मेरे लिए खुद के लिए एक चैलेंज बन गई थी कि मुझे वापस फिट होना है तो मुझे पूरा 1 साल लगा मेरी जॉब भी चल रही थी साथ साथ तब पेप्सी में थी मैं मेरी 5.5 महीने की थी डॉटर जब मैंने वापस काम पे चली गई थी मैं एंड एक्सरसाइज के लिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था छोटा बच्चा था तो मैंने एक ट्रेनर लगाई जो तब इंडिया में रशियन मॉडल थी जो पर्सनल ट्रेनर बन गई थी वो मेरे को घर आके ट्रेन करती थी उस टाइम पे मैं बहुत एक्सपेंसिव था वो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि तू इतने पैसे पर्सनल ट्रेनर को देती है यही तू मेरी सिस्टर कहती थी किट्टी डाल तो एक तेरा डायमंड का सेट आ जाएगा तो मैं उसको एक ही जवाब देती थी जो कि मैं सब औरतों को कहूँगी कि डायमंड के सेट गोल्ड के सेट तो आ जाएंगे आप पहन भी लोगे और वो एक्सपेंसिव डिज़ाइनर कपड़े भी आप बनवा लोगे बट जब आप उनको पहनोगे अगर आप फिट नहीं हो तो वो आपको सजेंगे नहीं आप मैं बॉडी पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ मैं ये नहीं कह रही कि आप मोटे हो तो आप फिट नहीं हो फिटनेस का मतलब कुछ और है आप प्लस साइज मॉडल्स को देख लो वो हर कुछ पहनती हैं बट बहुत सुंदर लगती हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज भी करती हैं थोड़ा फिट होती हैं मतलब थोड़ी स्ट्रेंथ दिखती है आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आपकी पर्सनालिटी निकल के आती है आपका पोस्चर ठीक रहता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप कैसे बैठते हो कैसे खड़े होते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं तो मेरे के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं फिट हूँ तो मेरी जर्नी फिटनेस की थी नॉट कि मुझे वेट लूज करना है सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं फिट और अच्छी लगूं स्ट्रेंथ हो मेरी बॉडी में ताकि मैं बहुत से काम जो हमें लगता है मैं नहीं कर पा रही हूँ मसल्स वीक हो जाती हैं हमारी अगर स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ बिल्ड होती है हम वो सब कर पाते हैं इट्स अबाउट बिल्डिंग स्ट्रेंथ सो शुरुआत कितना की थी फिर फिटनेस की जर्नी दी तो मैंने पर्सनल ट्रेनर के साथ ही शुरुआत करी और ऐसा नहीं है कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी है ये मिथ है लोगों को लगता है कि मैं अगर 5 दिन जिम नहीं जा पाऊंगी तो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं तब करूंगी जब मेरे पास टाइम होगा ये सबसे बड़ा लोगों के अंदर हाँ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 days a week ਜਾਓ 6 days a week ਜਾਓ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ मैं thrice a week जानी है सिर्फ ओके thrice a week is more than enough हाँ आप खाते क्या हो 70 to 80% ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ 20-30% ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਾਂਠੇ ਆਲੂ ਦੇ ਤੇ
ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਮਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਟ ਮੀਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹੋਗੇ, हेल्दी खा रहे हो? नहीं, आप हाई कार्ब डाइट ले रहे हो, लेस प्रोटीन ले रहे हो, फैट बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जा रहा है, आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपके लिवर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, आपकी बॉडी बॉर्डर पे आ जाएगी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, बीपी, आप नाम लो, सारी बीमारियों की जड़ क्या है? हार्ट प्रॉब्लम्स, यही है। तो फिट रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे पतले होना है, फिट रहने का मतलब है कि मेरे को ठीक खाना है ताकि मेरे सारे ऑर्गन्स पे इतना प्रेशर ना आए। वो मेरे लिए इज मोर इम्पोर्टेंट कि मैं फिट रहूं। मुझे ये है कि मैं जब बूढ़ी हो जाऊं तो मुझे किसी पर डिपेंड ना करना पड़े। आई थिंक ये मेरा गोल है जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ इंस्पिरेशन आई? ये मैं हमेशा बोलती हूँ सबको, मैं कहीं ना कहीं हर लड़की के अंदर ये सपना होता है। मे बी हमारी दादियों नानियों में नहीं शायद, क्योंकि उस जमाने में ये इतना होता ही नहीं था अवेयरनेस। आई थिंक ये जब हमारे कंट्री से जीती ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता सेन, आई थिंक वो हमारी कंट्री के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था। मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड के टाइटल जब वो जीत के आई, एंड देन ऑफ कोर्स फॉलोड बाय प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता। आज प्रियंका चोपड़ा सी ग्लोबल आइकॉन है। तो उसने हम सबको इंस्पिरेशन दी एक कहीं ना कहीं उस वर्ल्ड की। हम सब उस वर्ल्ड से मेस्मराइज थे। कौन लड़की सज सवर के रैंप पे वॉक करना नहीं चाहती? आप मुझे बता दो। जी, हर लड़की ये सोचती है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मैं और मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा की ना जो भी नई साड़ी आती थी ना, हमने पहले पहन के ना वॉक करनी है, फिर मम्मा को पहनने को मिलनी है, क्योंकि एक पैशन होता था। बट वो ड्रीम्स हर औरत की, वो जो लड़की के वो ड्रीम्स होते हैं ना, कई बारी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम अपनी लड़कियों को क्या बोलते हैं? पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर बनाओ। हमारी जनरेशन में ये था। हमारे से पहली वाली जनरेशन के ड्रीम और भी अलग थे। उनके तो ड्रीम्स भी बड़े पैट्रियार्की सिस्टम ने मैनिपुलेट करे हुए थे। उनके बेचारियों के सपने क्या थे? उनके सपने थे मेरा परिवार हो, मेरे बच्चे हो, पति हो, घर परिवार सुखी रहे, बस यही सपने होते थे। उन बेचारियों की जिंदगी तो बच्चे चूल्हे चौकी से शुरू होके खत्म हो जाती थी। हमारे जमाने में थोड़ा चेंज आया कि पढ़ाई करो, कुछ करो। वो क्यों आया? क्योंकि हमारी जो मदर्स थी, उन्होंने ये देखा कि हमारी आइडेंटिटी, हमारे ड्रीम्स क्रश कर दिए गए या बनने ही नहीं दिए। उन्होंने अपनी बेटियों को एम्पावर किया कि तुम जाओ, पढ़ो, कुछ जिंदगी में करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। आगे हमारी जनरेशन ने और नए सपने देखे उस इंडिपेंडेंस के साथ, कि हमें ये भी सपने देखने का हक है, हम ये भी सोच सकते हैं, हम भी उड़ सकते हैं। जी रुचिका, फिर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਗਾ ਕੰਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ओके, तो जब मेरे ये ड्रीम्स वापस आए, मैंने जब जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, मुझे लगा कि बोर्ड रूम में तो मैंने विन कर लिया है, अब जिंदगी में और कुछ नया क्या कर सकती हूँ, कुछ वॉइड है। तब मेरे को इस पैजेंट के बारे में पता चला। मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा, मगर मैंने अप्लाई कर दिया। तो ऑनलाइन अपलोड करनी थी, तैयारी भी करनी पई फिर। हाँ जी, पहले तो सिर्फ बैठे बैठे ना 2 पिक्चर्स अपलोड करनी थी ऑनलाइन, करता रजिस्टर करना सी, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। तो फोटोਆਂ देख के कॉल आ गई। हाँ, 2 फोटोज भेजनियां सी, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ।
फिर इंटरव्यू कॉल जो था वो जूम पे होता है, ठीक है। हॉट मॉडल मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का जूम पे ऑडिशंस होते हैं, क्योंकि वो ग्लोबली सारी मैरिड इंडियन वुमेन जी आती हैं। तो ऑनलाइन जूम ऑडिशन में वो सिर्फ आपकी शक्ल नहीं देखते हैं, वो ढूंढते हैं एक पर्सनालिटी। तो उसके अंदर वो आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, वो आपसे वॉक भी करवा के देखते हैं, वो आपसे कहते हैं अपना 1 मिनट का इंट्रो भी दीजिए जी। तो पूरा एक इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है। मेरा भी सेम हुआ, आई गॉट सिलेक्टेड। यहाँ तक तो फिर भी आसान था। असल चैलेंज शुरू हुआ इसके बाद। कितने राउंड सीगे टोटल रुचिका? सबसे पहला राउंड था, इसके बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद सोशल मीडिया टास्क। ओके। हमें 4 महीने सोशल मीडिया टास्क दिए गए थे। हर हफ्ते हमें 6 पोस्ट डालनी थी ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, एंड उसके ऊपर हमें शूट्स करनी है, हमें कॉन्सेप्ट बनाना है, हमें खुद सारी प्लानिंग करनी है। दे गिव अस आइडिया, ओके, बट बाकी सब तो कॉन्सेप्चुअलाइज सब इंटेलिजेंस यूज करनी खुद करना है। ठीक है। वहाँ पे मैंने कोविड के टाइम पे आई वेंट बैक टू स्कूल। ओके। आई डिड सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम BCIT। वो मेरे बहुत हैंडी आया इसमें, क्योंकि मैंने अभी नई नई पढ़ाई करी थी, मुझे इसके बारे में नॉलेज थी। उसका मैंने पूरा फायदा उठाया और मैंने सोशल मीडिया टास्क में जी जान लगा दी, जिसके अंदर मेरे यहाँ पे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके बगैर मैं अकेले नहीं कर पाती जी। तो जो भी लड़कियां ये या फीमेल्स जो करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी का सपोर्ट, चाहे दोस्त हो, चाहे हस्बैंड हो, फैमिली हो, कोई भी आपको सपोर्ट तो चाहिए। उसके बगैर बड़ा मुश्किल है ये जी। मैं नहीं कह रही नामुमकिन है, थोड़ा मुश्किल है जी। एंड 4 महीने के ये एक तो टास्क चल रहे थे, उसके साथ साथ हमारी ग्रूमिंग होती है ऑनलाइन। हर एस्पेक्ट की ग्रूमिंग होती है, फिटनेस की, हमारी क्वेश्चन आंसर राउंड की, वॉक की, फोटोज की, मेकअप, स्टाइलिंग, एवरीथिंग ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਈਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ weight ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਬੋਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ओके। इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਮ ਦੀ ਜਰਨੀ। नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा आपको वेट लूज करना है। तुसी चाहते हो तुसी बेस्ट दिखो, बेस्ट लगो, एंड सिर्फ देखना नहीं है, एक पर्सनालिटी है। वो ढूंढते एक पर्सनालिटी जो कि कहीं वॉक करे, एंटर करे तो उसके अंदर वो जो ऑरा है, जो वो क्वीन वाली पर्सनालिटी है, उसकी होनी चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਸ ਵੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आई थिंक हम जो औरतें हैं ना, हम ब्लेस्ड हैं। रब ने ना सानू एक पावर दी है, सुपर पावर दी हुई है, मल्टीटास्किंग दी। हम बहुत सारी चीज़ें, अगर आप देखो, हम सारी जिंदगी करते ही आ रहे हैं, बहुत सारी मैनेज चीज़ें इकट्ठी एक बार में। तो ये क्या है, अगर हम अब ठान लेना कि हमने ये करना है, तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मुझे कौन रोकेगा? ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਊਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਗਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। थोड़ा मुश्किल सवाल है, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे।
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੂ نو ਦਾ ਆਊਟਰਾਈਟ ਵਿਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਲਾਵਰੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। चलो नो फिल्टर, ਹੂੰ असलियत बताती हूँ आपको इस इंडस्ट्री की आज। ਜੀ हाँ होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹ। मैं बता रही हूँ आपको, पैजेंट्स, बहुत सारे पैजेंट्स ਰਿਗਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, रिग्ड होते हैं। ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पैसा डिसाइड करता है, ਪੈਸਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। पैसा या और बहुत ਮੈਂ फैक्टर्स और ਅਗਲੇ होते ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ होंगे। ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੇਵਰਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ। और बहुत मुश्किल सवाल है। ਜੀ हाँ ऐसा भी होता है। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है ਜੀ और सब कुछ हो रहा है, ਹੂੰ मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। और ये जो है ना एलिमेंट जो आप कह रहे हो कि रिग्ड होता है या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या जो भी हाँ, मैनिपुलेटेड है चीजें, हम्म, ये सब हर जगह नहीं है। हम्म, ये एक बहुत ही स्मॉल या डिफरेंट सेक्शन है हम्म, जहां पर जिसकी वजह से कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, हम्म, सो वही है। हम्म, आप एक कहीं या दो जगह कहीं कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से बाकी सबका भी नाम खराब होता है। हम्म, और अच्छे घरों के जो लोग हैं वो कहते हैं इसमें नहीं जाना, इसमें बहुत गंद है, हम्म, हम्म, यही बोला जाता है हम्म, लड़कियों को, जी बीवियों को, यही कि इस लाइन में नहीं जाना। हम्म, मगर मुझे ये लगता है शायद मेरे अंदर भी ये कहीं सोच डर था, डर सीगा हाँ। डर था मेरे अंदर, इस बात का डर नहीं था कि ਤੁਹਾਨੂੰ कॉम्प्रोमाइज ਇਹ करना ਜਿਹੜੀਆਂ पड़ेगा। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? नहीं देखो, पढ़े लिखे हैं हम, अवेयर हैं, सुनते तो हम ਪਰ भी हैं। ਇਨਸਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ना। इनसाइड चीजें आके पता चलिया। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में है तो आप गलत हो। हम्म, ये हर दुनिया में हर जगह है। आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं है? हम्म, हर जगह है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप हर जगह बहुत कुछ हो रहा है, हम्म, मगर ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो हम्म, और आप दुनिया को किस तरीके से दुनिया आपको परसीव करती है। हम्म, आपको क्या लगता है मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रॉब्लम नहीं आई? हम्म, मैं पेप्सी में जब थी, बहुत मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री थी, हम्म, मैं अकेली फीमेल थी बोर्ड रूम में इन 20 मेल्स, हम्म, अकेली फीमेल, हम्म, मगर किसी के सामने, किसी की मेरे सामने आवाज नहीं निकलती थी गलत जी। तरीके से, जी क्योंकि मेरा एक डर था कि ये नॉनसेंस नहीं लेती किसी से। हम्म, मैंने अपने सीईओ से भी एक बार ऐसे करके बात करी थी, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस, ऐसे करके उंगली दिखा के। हम्म, वो हूं मैं, क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा ਠੀਕ ਹੈ बोलेंगे। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਗਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆ, ਅਨਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ? अगेन मैं इस पुरानी बात पे दोबारा आती हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पैजेंट के लिए जा रहे हो। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਲੱਗਦਾ सारे ਨਹੀਂ ਕਿ एक नहीं है ਅਨਫੇਅਰ ना, ਹੈ? नहीं सारे पैजेंट एक उसमें नहीं, आप मोल्ड में नहीं डाल सकते हो। ਹੂੰ, वही जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन से पैजेंट के लिए जा रहे हो। ਹੂੰ, कुछ पैजेंट होते हैं हर जगह, मैं नहीं कहती हूँ कि दे ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ कॉम्प्रोमाइज ਜਿਹੜੀਆਂ करना है। ਫੀਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि हम्म। कौन सा पैजेंट में जो प्रीवियस विनर्स बने हैं उनका क्या बैकग्राउंड था, हम्म, हम्म, वो क्या उनकी कैपेबिलिटी थी, हम्म, क्या उनके स्किल्स थे, हम्म, वो डिजर्विंग थी कि नहीं थी। हम्म, अगर वो डिजर्विंग थी, जो बनी है, उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जो एक विनर में होने चाहिए, तो इट विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ना। आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये पैजेंट गलत नहीं है, क्योंकि इसमें राइटफुल ही विनर्स हैं। ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਓਕੇ ਰੁਚਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂਪਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਪੈਜੈਂਟ ਤੇ ਰਿਗਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ 200% ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, मैं जीत के आना। कहते ना वो अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, मुझे सिर्फ क्राउन दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। मैं सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस कर रही थी, अपने काम पे फोकस कर रही थी। एंड जब मैं जीती, मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। इट वॉज अ वेरी ऑनेस्ट एंड ए जेन्युइन विन। और मेरे से पहले भी जितनी जीती हैं जी, वो भी जेन्युइन जी। तो ये सिर्फ कह देना कि सारे रिग्ड हैं, हम सबकी विन को क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते ये कह के सारे नहीं हैं, बट कुछ हैं, कुछ है, ठीक है। हम सबको एक ही उसमें नहीं तोल सकते। अगर मैं ये कह रही हूँ तो हाँ कुछ है, सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दीजिए और एक ट्रैप में मत फंसिए। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ, ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। हाँ, ये बहुत जरूरी हैगा। सारे नहीं हैगे, बट यस थोड़ी जगहों पे, कई जगहों पे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ है, ਇਹ भी who are we to decide that जी। बट yes, जब आप अगर किसी भी प्रोफेशन में आप कहीं पर भी जाएं, ऑफ कोर्स हम जॉब भी करने जाते हैं तो हम कंपनी का चेक तो करते ही है ना, हम कहाँ नौकरी करने जा रहे हैं जी। कहीं भी जाएं चेक जरूर करें। रुचिका, अगले 5 years ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਮਾਡਲਿੰਗ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। एक्टिंग च भी जा रहे हो, मूवीज की कोई ऑफर आई है, कुछ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी सोचा है? अपॉर्चुनिटीज काफी आ रही हैं अभी, बट मैंने अभी किसी के ऊपर भी फाइनलाइज नहीं किया है। अच्छा, कित्थों, पंजाबी मूवीज तो या हिंदी तो कित्थों आई है ऑफर? दोनों एरिया से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जी, बट हाले मैं सोच रही हाँ, हाले आई एम नॉट श्योर कि मैं करना नहीं करना। Why? करना है ते बिकॉज एज यू सेड कि इस इंडस्ट्री में कहते हैं ना फूक के कदम रखना पड़ता है। आपको नहीं पता कौन ऑथेंटिक है, कौन तुसी राइट अपॉर्चुनिटी दी वेट कर रहे हो। हाँ, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को मैं कोई गलत उसमें कोई भी गलत कदम या कुछ हो मेरे साथ जी। तो मैं बहुत केयरफुली चलने वाली हूँ। मैं बहुत केयरफुल थी, तभी मैं हॉट मॉड में गई जी, जो कि राइट पैजेंट है। मेरा वो क्वेश्चन का जवाब दियो भी की विजन है अगले आने वाले समय च? मेरा विजन है कि मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती हूँ। एग्जांपल? आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन रिलेटिंग टू दिस pageants and all not that? necessarily related to pageant only. It can be anything, it can be product also, it can be any industry। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है यही हो, बट मेरा विजन वही है। ठीक है, तो all the best ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੁਚਿਕਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੁਚਿਕਾ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? पहले वाली रुचिका कॉन्फिडेंट थी बिल्कुल थी, मगर
ये वाली रुचिका में एक अलग बदलाव है, हाँ वो की है। एक एनर्जी शिफ्ट हुई है, हम्म एक कहते हैं ना, मैं अपना ही बेटर वर्जन हूँ। 2.0 वर्जन कहते हैं ना, बेटर वर्जन अपडेट हो जाते हैं। जैसे आजकल टेक्नोलॉजीज अपडेट होती हैं, वैसे ही मुझे लगता है मेरे अंदर भी वो ना अपडेट हुआ है। और मैं अपना ही बेटर वर्जन बनी हूँ। एंड आई थिंक उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं इस पैजेंट को देती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जीतो या हारो, क्राउन मिले ना मिले, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जर्नी, जो आप सीखते हो। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन एक इंसान में आती है, एक लड़की में, एक फीमेल में आती है, वो कभी नहीं आ सकती। मेरे हिसाब से अगर मेरा बस चले तो हर लड़की, हर औरत को एक बार जिंदगी में पैजेंट में जरूर जाना चाहिए। अच्छा रुचिका, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी क्लोज। जब हम बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता, हम क्या करते हैं उसके लिए। सबसे पहले तो हमारी जो औरतें हैं अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। मैं सोचती थी ये सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, मगर मुझे कनाडा आके पता चला यहाँ पर भी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। एंड हम यहाँ पे एक NGO है बाय द नेम ऑफ सारा फॉर वुमेन। पार्डन? सारा फॉर वुमेन। ओके। उनके लिए मैंने फंड रेजिंग करी है, उनके लिए मैंने काम किया है। मैंने खुद स्पॉन्सर्स भी करे हुए हैं कुछ शोज, जहाँ पे उनकी कलेक्शन गोज टू दिस NGO। दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड और भी एक NGO है जहाँ पे मैं डोनेशंस वगैरह करती हूँ फॉर वुमेन, एंड मैं कलेक्ट करती हूँ। आई हेल्प अदर वुमेन जो वहाँ पे डोनेट करें, उनको भी मैं प्रेरित करती हूँ, एनकरेज करती हूँ। मैंने होमलेस के लिए भी उनके वार्म फूड के लिए भी मैंने चैरिटी फंड इकट्ठे किए थे, वो भी मैं अलग अलग चैरिटीज़ के लिए मैं अलग अलग फंडिंग कलेक्ट करती हूँ। इंडिया में फॉर अ हॉस्पिटल इन अ रूरल विलेज, शांति सज्जल, उसके लिए भी मैंने फंड रेजिंग करी है। वो गरीब बच्चों के लिए स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन एंड फूड फॉर बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते इन बिहार। बहुत ही रूरल एरिया है वो, वहाँ के लिए मैंने फंड रेजिंग करी है। तो अलग अलग है। अभी आजकल मैं एक और चैरिटी के साथ बात कर रही हूँ, जहाँ मैं जो हमारी बच्चे आए हुए हैं इंडिया से यहाँ पर, इट्स नॉट इंटरनेशनल स्टूडेंट कह लो या काम के लिए जो आए थे जी। आपको पता है उनमें से कितने लोगों को वापस भेज दिया गया है जी। और बहुत से अभी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि मे बी उनकी लैंग्वेज बैरियर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है उतनी, बिकॉज वो स्मॉल टाउन से आए हैं, विलेजेस से आए हैं। जो हमने दिल्ली में पढ़े भले बड़े हैं, सीखा है, या मैंने जो इतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, जो ट्रेनिंग्स हुई हैं हमारी, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस एंड क्योंकि मैं अपनी टीम की ग्रूमिंग इंडिया में भी करती थी जी। बहुत लोगों को मैंने ग्रूम किया है, तो मैं उनको ग्रूम करना चाहती हूँ ताकि उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकें जो वो डिजर्व करते जी जी। रुचिका, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਐਂਡ
ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कि ਇਹ रस्ते गलत हैगे ने, नहीं। अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाना और सही और गलत की पहचान करना, ये तो हमारे को बहुत ज़रूरी है अपनी फीमेल्स को, बच्चों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सिखाना। क्योंकि ये चैलेंज हर मोड़ पे, हर प्रोफेशन में आते हैं, चाहे कोई भी हो। तो पहले तो आप कॉन्फिडेंट बने अपनी चॉइसेस में, और उसके बाद मेरे ख्याल से आपको अपनी ड्रीम्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको उसके लिए आगे बढ़कर हिम्मत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे सपने साकार हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं। थैंक यू। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਰੁਚਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਾਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾ ਆਊਟਰਾਈਟ ਵਿਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਲਾਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।